Hello everyone. Today we will discuss kitchen layout part 2. Part 1 में हमने जो डिस्कस किया था, we will quickly take the recap of it. Why exactly kitchen layout is necessary? What are the major three factors you should consider while laying out any type of kitchen? The first is receiving, cooking and service. उसके बाद में अगर आप देखोगे तो व्हाट आर द मेजर सिक्स फैक्टर्स जो है किचन लेआउट के टाइम पे द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द लेआउट ऑफ किचन. ये सिक्स मेन फैक्टर्स है जिसमें लोकेलिटी, कस्टमर, क्लाइंटेल, गेस्ट का किस क्वालिटी ऑफ गेस्ट और स्टैंडर्ड्स ऑफ गेस्ट, उसके बाद में टाइप्स ऑफ मेन्यू, सीजनल प्रेशर, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सपांशन, ये सारा कुछ उसमें आ जाता है. देन आफ्टर किस टाइप का मेन्यू सर्व होने वाला है, किस टाइप का मील सर्व होने वाला है, किस लोकेलिटी में आपका बिजनेस है, किस स्टाइल का आपका बिजनेस है, एग्जैक्टली इक्विपमेंट्स किस तरीके के आप यूज़ कर रहे हो, मैकेनिज्म किस तरीके के आप यूज़ कर रहे हो, रिसीविंग एरिया आपका कहाँ पे है, प्रिपरेशन एरिया कहाँ पे है, स्टोरेज एरिया आप किस तरीके से करने वाले हो, कितना डिस्टेंस है मेन किचन में, स्टोरेज एरिया में, रिसीविंग में, कोल्ड सेक्शन में, फ्रीजिंग में, ये सारा कुछ आता है किचन लेआउटिंग के टाइम पे. ये सारे फैक्टर्स यू शुड कंसिडर व्हाइल लेइंग आउट एनी किचन. फ्रीजर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, नेगेटिव में क्या होना चाहिए, -18 अगर आप कंसिडर करते हो, सो दैट शुड बी अ टेम्परेचर फॉर कोल्ड रूम एंड और उसमें फ्रीजर भी कहते हैं. अगर उसे आप पॉजिटिव टेम्परेचर में रखते हो, वॉक-इन चिलर जिसे कहते हैं, उसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रखा जाता है. So, अगर आप vegetables and preparation area की when we talk about that, the points should be considered. That is washing, cleaning, preparing, trimming, cutting. These are the points. Butchery है उसमें, butchery भी आती है. So the last slides which we discussed, that was butchery, and it is, again I'm repeating that point. It is an air-conditioned room for meat preparation, bone saws and weighing scales, and butcher blocks will be provided. The butchery must be situated close to the freezer. Non-slip flooring is essential, and fly catchers must be installed. ये बुचरी का लेआउट, बेसिक लेआउट होना चाहिए. एयर कंडीशन से लेके उसका जो फ्लोर है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए, उसमें फ्लाई कैचर्स होने चाहिए, डिसइंफेक्शन के लिए वाटर सिंक्स जो है उनकी अरेंजमेंट उसमें प्रॉपर होनी चाहिए. So when we talk about service and washup area, this is the main and this is a very important area you should consider in kitchen layout, because इस एरिया से ही F&B सर्विस के लिए यूटेंसिल्स, क्रॉकरी, कटलरी प्रोवाइड किए जाते हैं आफ्टर वॉशिंग अप. ये एरिया अगर लेआउट में प्रॉपरली डन नहीं किया गया है, सो इट directly hammer to the operations of kitchen or operations of restaurant. And obviously you all know that kitchen or restaurant का operations अगर hamper होता है, so that leads towards business loss or that leads towards customer complaints. So service and washing area, when we talk about, the service area is situated between the kitchen and restaurant and has the following function: clean dirty equipments ordering from the restaurant floor, supplies clean equipments to the restaurant and kitchen, calling point for food orders, delivery of food, and fifth is cashier. So service and worship area, that is issuing meal to the restaurant, is carried out in this area. A kitchen clerk called the aboyer is stationed at the survey counter throughout the meal period. The kitchen clerk का aboyer का मतलब होता है the person who calls the order, who receive the order from restaurant and who explain the order in the kitchen. The mediator between F&B service and kitchen, that person is called aboyer. Aboyer is stationed at the survey counter throughout the meal period. On receipt of the waiter check, that is KOT, kitchen order ticket, he announces in loud and clear voice the order with the special instruction. If there are any special instructions, if there is something that guest wanted to make it, guest wanted to have the special ingredients or any special instruction, that should be mentioned clearly.
The section must be acknowledged, the order in written. Most order are executed in part, that is suite. Let's discuss to the cashier point. What is the role of cashier? The cashier prepares the bill and gives it to the waiter for presentation. The paid check and the cash is returned to the cashier, who will stamp it with a paid stamp. A dispense bar is also situated in the area for drinks in the restaurant and rooms. ये जो कैशियर की बात कर रहे हैं, ये जब मैनुअल बिलिंग्स होती है इस टाइम पे आपको स्टैम्प करने की जरूरत होती है. मोस्ट ऑफ द नाउअडेज 5 स्टार कैटेगरी पे टॉक अबाउट सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जिसके ऊपर बिल पेड का प्रिंट होके आता ही है. वो यू डोंट नीड टू प्रिंट, यू डोंट स्टैम्प, एक्स्ट्रा स्टैम्प इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है. मैनुअल स्टैंपिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है. रेडीमेड स्टैम्प उस पर होके आता है एंड ये सब सिस्टम सेंट्रलाइज सिस्टम से ही आता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट वॉशिंग एरिया, व्हाई वॉशिंग एरिया इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज वॉशिंग एरिया से जितने भी फूड एंड बेवरेजेस की यूटेंसिल्स हो गए, किचन के बड़े बड़े यूटेंसिल्स हो गए, ये सारे वॉश होके यहाँ पे जाते हैं. Now, why is that area is so important and why is that area should be organized properly? Let's say एक किचन में ऑपरेशन चल रहा है, पिक ऑफ द टाइम 8:30 का टाइम चल रहा है, रेस्टोरेंट फुल बिजी है एंड ऑर्गेनाइज्ड आपके पास में आपका वॉश एरिया इज नॉट ऑर्गेनाइज. आपको क्रॉकरीज नहीं मिल रही है, आपको कटलरीज नहीं मिल रही है, आपको किचन से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि किचन वालों को भी यूटेंसिल्स नहीं मिल रहे क्लीन होकर. तो ये एक सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रलाइज पोर्ट एरिया या सेंट्रलाइज वॉशअप एरिया ऑर्गेनाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है. इसलिए ये पूरा का पूरा उस पर्टिकुलर इवनिंग का ऑपरेशन हमको हो चुका है. अगर आप शेफ को या किचन टीम को यूटेंसिल्स नहीं जाएंगे टाइम पर तो बट ऑब्वियस वो उनका खाना जो है वो प्रिपेयर होने में उतनी टाइम लेगा. खाना प्रिपेयर होने में टाइम ले रहा है तो टेबल पे खाना गेस्ट के लेट जा रहा है, तो दैट लीड्स टू कंप्लेंट. इस तरीके के सारे ऑपरेशंस में प्रॉब्लम्स आती है. ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. एक बार दो बार होता है, उसके बाद में रिपीटेडली देन गेस्ट विल स्टॉप कमिंग टू दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट. तो इसलिए किचन का जो वॉशअप एरिया और जिसे आप सर्विस एरिया वॉशअप एरिया कहते हैं वो प्रॉपरली लेड आउट होना बहुत जरूरी होता है. So the washing area, dishwashing has a high rate of importance because of its significance in sanitization and hygiene. Yes, this is also a very important part, that is sanitization and hygiene. The wash-up area consists of 3 parts manned by kitchen steward. One is loading, second is washing, and third one is unloading. So when we talk about loading, washing and unloading, so dirty equipment is pre-washed and loaded on basket trays for machine or hand washing. Washing consists of cleaning, rinsing and sanitizing. Unloading the clean equipment is kept on rack picked by waiters or delivered by steward. ये 3 पॉइंट्स जो है ये हमेशा कंसिडर किए जाते हैं वॉशअप एरिया के. व्हाट इज लोडिंग? लोडिंग इज dirty equipment is pre-washed and loaded on a basket फॉर मशीन एंड हैंड वॉशिंग. डर्टी इक्विपमेंट जो होते हैं वो प्री वॉश के लिए वहाँ पे लोड किए जाते हैं बास्केट में और ट्रेज में. मशीन और हैंड वॉश के लिए वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया को लोडिंग कहते हैं. वॉशिंग जो होता है कंसिस्ट ऑफ क्लीनिंग, रिंसिंग एंड सैनिटाइजिंग. वॉशिंग में क्लीनिंग होता है, रिंसिंग होता है एंड सैनिटाइजेशन होता है प्लेट्स का, यूटेंसिल्स का, क्रॉकरीज का, कटलरीज का. एंड अनलोडिंग जो होता है द क्लीन इक्विपमेंट्स इज केप्ट ऑन रैक पिक्ड बाय वेटर और डिलीवर्ड बाय स्टीवर. अनलोडिंग के लिए वहाँ पे स्टीवर्स की जरूरत होती है. ये F&B फूड एंड बेवरेज टीम जो होती है वो अनलोडिंग करती है सारे इक्विपमेंट्स का पोर्ट वॉश से. प्री रिंसिंग कॉल फॉर वाटर ऑफ वार्म टेम्परेचर दैट इज 120 Fahrenheit will melt fat but not cook food firmly onto the surface. ये टेम्परेचर है. This question asked many times in interviews. सर्विस इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और किचन के इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर क्या होता है डिश वॉशर का. अगर ग्रीस को निकल इफ यू वांट टू टेक द ग्रीस आउट, सो व्हाट द टेम्परेचर शुड बी ऑफ डिश वॉशर. सो द टेम्परेचर शुड बी 120
डिग्री फ़ारेनहाइट। उससे ग्रीस जो होता है, बटर है या कोई भी ऑयल है या कोई कुछ भी ग्रीसी फैटी लेयर जो होती है डिश के ऊपर, वो निकल जाती है आसानी से। बट कुक फूड जो होता है सरफेसेस पे एज इट इज होता है, वो नहीं जाता है इस टेम्परेचर में। सो टेम्परेचर हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट इज द वॉशिंग टेम्परेचर मस्ट बी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। वॉशिंग के लिए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हॉट इनफ फॉर इफेक्टिव क्लीनिंग एक्शन। इतना टेम्परेचर इनफ होता है फॉर इफेक्टिव क्लीनिंग एक्शन। We are discussing now the sanitization part because sanitization is very important. ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। सो टेम्परेचर हमेशा याद रखिएगा। द वॉशिंग टेम्परेचर मस्ट बी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, hot enough for effective cleaning action. Sanitization call for temperature of 180 degree Fahrenheit for 10 seconds. In a small hotel, dishwashing is done manually, but the process is the same. Ideally, separate worker should be provided for handling dirty and clean dishes. To ensure effective dishwashing, water temperature must be maintained. Detergent concentration should be effective and correct handling procedure follow. करेक्ट हैंडलिंग प्रोसीजर जो है वो उसकी फॉलो होना ज़रूरी होता है। सो इस तरीके से आप पूरा का पूरा किचन लेआउट जो है, इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स जो है किचन लेआउट में कंसिडर करने चाहिए, इंक्लूडिंग योर वॉशिंग एरिया एज वेल। क्यूजीन के बारे में अगर बात करें किचन लेआउट में, वाई क्यूजीन फैक्टर इज इम्पोर्टेंट वाइल यू आर discussing anything while you are planning a kitchen layout. Just a small example I would like to share with you. For example, कि किसी रेस्टोरेंट में एक चाइनीज रेस्टोरेंट को अगर आप देखोगे तो उनको एक टिपिकल प्लेयर की ज़रूरत होती है। टिपिकल वो जो पैडल्स होते हैं उनको फ्लैम्बे के लिए या फ्लेम के लिए पैडल्स जो होते हैं, नॉर्मली रेंजेस में नॉब होते हैं और वो नॉब्स आप हाथ से आप उनको ऑपरेट करते हो। लेकिन चाइनीज रेस्टोरेंट में वो जो नॉब्स होते हैं, वो पैडल जो होते हैं, वो पैर से ऑपरेट किए जाते हैं। इसके पीछे रीज़न है, शेफ के जो होते हैं दोनों हाथ उस टाइम पे ऑक्यूपाइड होते हैं। एक हाथ में उसकी कढ़ाई होती है, एक वेसल होता है, और एक हाथ में उसका स्पैचुला होता है। तो पैर से वो फ्लेम को अप और डाउन करता है, क्योंकि चाइनीज क्यूजिन में बहुत ज़रूरी होता है उसका जो वेसल है वो बहुत थिन होता है। तो एक इंस्टेंट फ्लेम खाने को देने की उस टाइम पर रिक्वायर्ड होती है टू गिव द स्मोकी टेक्सचर और टू गिव द इंस्टेंट कुक। तो इसलिए पैडल में उसकी फ्लेम्स जो है वो कंट्रोल की जाती है। इस तरीके का रेस्टोरेंट में सेटअप होता है। तो ये सेटअप आप इंडियन क्यूजिन में कभी नहीं देखोगे, या ये सेटअप आप किसी टम्पू क्यूजिन में नहीं देख पाओगे। इंडियन में ही ये एक पंजाबी खाने में भी ये सेटअप नहीं है। तंदूर एक अलग सेक्टर है जिसके लिए किचन का लेआउट एक अलग सा होना चाहिए। अगर आपका रेस्टोरेंट बारबेक्यू रेस्टोरेंट है, अगर आपका रेस्टोरेंट बफे रेस्टोरेंट के लिए लाइव किचन की ज़रूरत पड़ती है। बफे रेस्टोरेंट के लिए शेफ एंड डिशेस के साथ में लाइव किचन भी चलते रहता है। तो ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर सेक्टर में आती है। ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में रखी जाती है कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड किचन लेआउट। अगर अच्छा किचन लेआउट है तो बफे रेस्टोरेंट में बहुत अच्छे से वहाँ पे बफे रेस्टोरेंट को सेट किया जाता है। उसके बैक साइड में किचन के लिए, लाइव शेफ्स के लिए, प्रिपरेशंस के लिए जगह होती है। सूट्स वहाँ पे किए जाते हैं। लैडर्स जो होती है या ट्रॉलीज जो होती है, वहीं पे सैलड्स का प्रिपरेशन गेस्ट के सामने होता है। स्नैक्स का प्रिपरेशन गेस्ट के सामने होता है। सूप जो है, सूप के साथ में कोई अल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट हो तो वो गेस्ट एज इट इज़ आपको बताता है कि गेस्ट आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ आई नीड this bread with the particular soup or something. So live kitchen बफेस के लिए रखा जाता है। तो ये कंसिडरेशन आपका डिपेंड होता है कि आपकी रेस्टोरेंट की स्टाइल क्या है, आपका मेन्यू क्या आप सर्व करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स है किचन लेआउट के लिए। एंड आई एम श्योर वी कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। इसमें कोई अभी बचा तो है नहीं, सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। क्विक रिकैप, होल सेशन का एक क्विक रिकैप हम आपको लेके चल रहे हैं। अभी ये मील ऑफर्ड है
Receiving and preparation area, this is the most important factor that you should consider while laying out the kitchen. रिसीविंग प्रिपरेशन एंड स्टोरेज, किस तरीके से गैस को स्टोरेज किया जाता है, किस तरीके से गार्बेज स्टोरेज गार्बेज डिस्पोजल प्रोसीजर फॉलो की जाती है, सेंट्रल स्टोरेज कैसे होता है, कोल्ड रूम किसे कहते हैं, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, निगेटिव रूम का पॉजिटिव रूम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रिसीविंग एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टोरेज एरिया कैसे होना चाहिए, पेस्ट्री, शॉर्ट ऑर्डर किचन, हॉट किचन, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, फ्राइंग, ये फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं. So yes, we have covered all the factors and for kitchen layout. आपको अगर इसके लिए कोई भी आपको क्वेश्चंस है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो. If you have any question with this, so you can directly ask the question. Thank you.